خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور جمخانہ کلب کے الیکشن میں سلمان صدیق اور میاں مصباح الرحمان پینل نے میدان مار لیا۔ 12 میں سے 10 نشستیں جیت لیں۔ مد مقابل ڈاکٹر علی رزاق گروپ صرف 2 نشستیں جیت سکا۔ لاہور جمخانہ انتخابات 2025 ڈاکٹر علی رزاق 1923 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر، سلمان صدیق 1788 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر، واجد عزیز خان 1751 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ میاں مصباح الرحمان 1665 ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر، سرمد ندیم 1647، میاں پرویز بھنڈارا 1461، سمیرہ نذیر 1392، سردار قاسم فاروق 1366، خواجہ عمران زبیر 1356، میاں وقار الدین کی 1331، شوکت جاوید 1322 اور 12ویں نمبر پر قمر خان بوبی 1247 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ طاہر رضا نقوی 1180، سید عابد حسین 1169، میاں اظہر سلیم 1080، ڈاکٹر نجم الدین 1067، عمر جاوید ضیاء 1008، آغا علی امام 957، اسد الرحمان 915، آمین تقی بٹ 864، سرمد ملک 851، وقار نثار 727، آغا قاسم رضا 681، میجر ریٹائرڈ افتخار علی چٹھا 621، محمد شہریار شامی 611، ڈاکٹر شاہد رضا 364، سید عامر علی 123 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ اے راہ حق کے شہید و وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ شمالی وزیرستان میں مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے لیفٹیننٹ محمد حسن اشرف کی نماز جنازہ لاہور گیریزن میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور اعلیٰ سول فوجی حکام نے شرکت کی ہے۔ 21 سالہ لیفٹیننٹ حمید کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا بیان میں کہنا تھا کہ یہ عظیم قربانی ہمارے بہادر بیٹوں کی غیر متزلزل لگن اور بہادری کی ایک اور شاندار مثال ہے، جنہوں نے اپنے پیارے وطن کی خود مختاری اور دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پوری قوم ہماری مسلح افواج کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کے لیے متحد ہے۔ امتحانی نظام میں شفافیت لانے کا عزم، لاہور تعلیمی بورڈ میں ڈیوٹیوں کے آٹومیشن سسٹم کا افتتاح۔ سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر کا کہنا ہے کہ نئے نظام سے بھوٹی مافیا کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ لاہور تعلیمی بورڈ کے امتحانی نظام میں شفافیت لانے کے لیے آٹومیشن نظام متعارف۔ سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر نے آٹومیشن سسٹم کا افتتاح کیا۔ امتحانی ڈیوٹی دینے والے اساتذہ کے ڈیوٹی اب مینول کے بجائے آٹومیشن طریقے سے لگے گی۔ نگران عملے کا ڈیٹا سسٹم میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر کہتے ہیں صرف سرکاری ٹیچر ہی ڈیوٹی دیں گے۔ ڈیوٹی لگانے میں بورڈ کے ملازمین کا کردار ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ شفافیت کو فروغ ملے گا۔ اب کسی ایگزامینر کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس کی ڈیوٹی کہاں لگا رہی ہے۔ ایون ہمارے اپنے سٹاف کی ڈسکریشن وہ ختم ہو گئی ہے کہ اس کو یہاں پہ لگا دے، اس میں یہاں پہ لگا دے۔ اب آٹومیٹیکلی وہ کمپیوٹر جو ہے وہ اس کی ڈیوٹیاں لگائے گا، تو اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ یہ جو اپنی مرضی سے سینٹر چوز کرنے کا وہ میٹر ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ایک پریڈکٹیبلٹی جو تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور اس میں انشاءاللہ فردر جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گی۔ سیکرٹری لاہور بورڈ مزید کہتے ہیں کہ شفافیت کے پیش نظر آٹومیشن کو دوسرے شعبوں میں بھی متعارف کروا رہے ہیں۔ کیمرہ مین محمد شہباز کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کہتے ہیں پی ٹی آئی دور میں طلباء کے ساتھ بہت ناانصافی کی گئی۔ 15 لاکھ گھوست ملازمین کو سکولوں سے نکالا گیا۔ پیف سکولز کی تقریب میں وزیر تعلیم نے طلباء کو کیا خوشخبریاں سنائیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام صوبائی سطح پر پیف سکولوں کے طلبہ کے درمیان ہم نصابی اور کھیلوں کے شاندار مقابلے۔ ہونہار طلبہ نے مقابلہ حسن قرأت، نعت خوانی، تقاریر، 100 میٹر، 200 میٹر اور 400 میٹر دوڑ میں بھرپور حصہ لیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں نقد انعام، ٹرافیاں اور شیلڈز تقسیم کی۔ صوبائی وزیر تعلیم کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا پی ٹی آئی دور میں طلبہ کے ساتھ بہت ناانصافی کی گئی۔ پیف پارٹنر سکولز کو ہونہار بچوں کے لیے کتابیں دینے جا رہے ہیں۔ تمام طلباء و طالبات کو 1-1 لاکھ روپے دینے کا وعدہ بھی کرتا ہوں۔ آپ سب کو انشاءاللہ ہم ریسورسز بھی دیں گے، اور ابھی شاہد فرید صاحب نے بڑی اچھی خبر دی ہے کہ پیف پارٹنر سکولز کو انشاءاللہ اس سال ہم ان کے ہونہار بچوں کے لیے 10,000 کروم بکس بھی دینے جا رہے ہیں۔ تقریب میں پنجاب کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے طلباء کا جوش و جذبہ قابل دید تھا۔ طلباء کا کہنا تھا ایسے مقابلے اعتماد میں اضافے اور مستقبل میں کامیابی کے دروازے کھولنے میں مدد دیتے ہیں۔ تقریب میں چیئرمین پیف ملک شعیب ایوان، سیکرٹری سکول خالد نذیر بٹو، مینیجنگ ڈائریکٹر شاہد فرید، ممبر چیف منسٹر ٹاسک فورس برائے تعلیم شکیل احمد اور دیگر بورڈ ارکان بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین محمد شہباز کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ گندم کی کاشت کا ہدف مکمل کر لیا، کپاس کا کام جاری ہے۔ صوبائی وزیر زراعت کہتے ہیں گرین پاکستان وزیر اعظم اور آرمی چیف کا خواب تھا جو چولستان میں حقیقت بن رہا ہے۔ کہا پانی کے ضیاع کے بجائے
कम पानी से ज़्यादा फसल की तरफ जाना होगा। DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि ज़राअत मुल्क का सबसे बड़ा शोबा है, लेकिन इसकी मैकेनाइजेशन नहीं की गई। GPI के प्लेटफॉर्म से नए ट्रैक्टर्स और नए मैकेनाइज तरीकाकार को मुतारिफ करवाया जाएगा। पंजाब में अर्बनाइजेशन बड़ी तेजी से हो रही है, इसके लिए ग्रीन ब्राउन एरियाज बनाए जा रहे हैं। पंजाब भर के अंदर अर्बनाइजेशन हो रही है, रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। ये तो इस गवर्नमेंट ने आके पहली बार ज़िलों के अंदर एक मास्टर प्लान्स बनाने शुरू किए, जो कि मेरी नॉलेज के मुताबिक पंजाब के बहुत सारे अजला के अंदर बन चुके हैं। ग्रीन ब्राउन एरिया पहली बार आइडेंटिफाई किया जा रहा है, वरना ग्रीन ब्राउन एरिया की इस अंदर कोई तमीज़ नहीं थी। जिसका जहाँ दिल किया फैक्ट्री बना दी, जिसका जहाँ दिल किया हाउसिंग सोसाइटी बना दी। कॉटन के लिए GPI और पंजाब हुकूमत काम कर रही है। चीन को वज़ीर आला पंजाब ने कॉटन की GMO पर रिसर्च का ऑर्डर दिया है। किसान को सब्सिडाइज कर रहे हैं। 2.5 माह से बारिश नहीं हुई, जिससे बारानी इलाकों में इसके असरात पड़ रहे हैं। ये सिर्फ कंसर्न चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का नहीं है, बल्कि इस पे GPI भी बहुत क्लोजली काम कर रही है, मिल के काम कर रहे हैं। GPI और हम मिल के इस कॉटन के रिवाइवल के लिए काम कर रहे हैं। हमने पहली बार 10 लाख एकड़, चीफ मिनिस्टर पंजाब का दिया हुआ टारगेट 10 लाख एकड़ अर्ली कॉटन लगाने जा रहे हैं, जो कि 15 फरवरी और 31 मार्च के दरमियान लगती है। उन्होंने बताया कि कल जब चोलिस्तान को देखा तो एक मौजज़े से कम नहीं था। चोलिस्तान में गंदम लगी है, ड्रोन्स का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, खादें बीज स्प्रे ड्रोन से किए जा रहे हैं। तवील अरसे तक हसरत व यास की तस्वीर बना रहने वाला पुंछ हाउस फिर से लश्कारे मारने लगा। 100 मिलियन रुपए की लागत से तारीख़ी पुंछ हाउस की बहाली का मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया। पुंछ हाउस 1849 में सर जॉन लॉरेंस की रिहाइश के लिए तामीर कराया गया। बड़े बड़े स्तूनों और बुलंदबाला छतों के साथ खूबसूरत अंदाज में बनाई गई खिड़कियां और दरवाजे लाहौर की मुल्तान रोड पर वाक़या पूंछ हाउस को यूरोपियन और मशरकी तर्ज तामीर का शाहकार बनाते हैं। वो पूंछ हाउस जो लाहौर की तारीख के मुतद्दिद अबवाब का ऐनी शाहिद है। 1849 में जॉन लॉरेंस की रहाइश के लिए तामीर होने वाला पूंछ हाउस अंग्रेज दौर में लाहौर में बनने वाली पहली इमारत है, जिसकी बहाली की अब अशद जरूरत महसूस की जा रही थी। ये काम सिर्फ आर्कियोलॉजी का या वॉल सिटी का ही नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है, कौम जिम्मेदारी है। जो कौमें अपनी हेरिटेज को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, बल्कि प्रमोट भी करें आप लोगों के थ्रू, वही जिंदा कौमें कहलाती हैं। तो नस्लों को बताने के लिए मेरा कोशिश थी कि इस चीज़ को वहाँ पे लेके आएं जो ओरिजिनल है। 2023 में पंजाब की हुकूमत के जेर इंतजाम पूंछ हाउस की बहाली के लिए 100 मिलियन रुपए की लागत से एक मंसूबा शुरू किया गया, जिसकी तकमील के बाद तवील अरसे तक बुझा बुझा सा दिखाई देने वाला पूंछ हाउस अब फिर से मुस्कुराता सा नजर आने लगा है। इमारत की दीवारों पर मौजूद फ्रेस्को वर्क को भी नए सिरे से बहाल कर दिया गया है। 90 डोर्स, 53 विंडोज और 28 वेंटिलेटर शट डाउन क्लोज, आगे ईंटें लगा के प्लस्तर करके उन्होंने बंद किए हुए थे। हमने वो सब खोले हैं। अब वो एक तो बिल्डिंग की प्रिजर्वेशन, सीढ़ियाँ देखने के काबिल हैं। जो आग लगी थी 2012 में, उसको हमने बाकायदा देवदार की लकड़ी ओरिजिनल उस पैटर्न पे, जिस तरह की गवर्नर हाउस की हैं, हमने उसको भी रिस्टोर किया है। बिलाशुबा इस मंसूबे की तकमील से इमारत मजीद तवील अरसे तक के लिए महफूज हो गई है। पूंछ हाउस की बहाली के इस मंसूबे की तकमील इस बात का पैगाम भी है कि अब महकमा आसार कदीमा या फिर वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के साथ साथ दीगर महकमे भी तारीखी इमारत की अहमियत को समझने लगे हैं। न सिर्फ समझने लगे हैं, बल्कि इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अमली तौर पर कोशिशां भी दिखाई देते हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। सूबाई दारुल हुकूमत में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बरकरार। आज लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 250, शहर का कम से कम टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। तफसीलात जानते हैं ज़ैन अली से। बताइए ज़ैन। आज बिल्कुल शहर लाहौर में आज जो है पिछले कई दिनों की निस्बत सर्दी की शिद्दत जो है वो महसूस की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ सूरज और बादलों की आंख मचोली का जो सिलसिला है वो भी जारी है। जबकि पिछले कई दिनों से ये चीज़ देखने की आ रही थी कि सूरज जो है वो अपने जौबन पर होता था और अपनी जो किरणें हैं वो सुबह सवेरे ही जो है वो ज़मीन पर बिखेर देता था, लेकिन आज जो है वो सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। अगर कुछ बात कर लीजिए शहर लाहौर में आज दिन भर रहने वाले दर्जा हरारत की, तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो कम से कम 12 डिग्री, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त भी शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है
वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि अगर बात कर लीजिए हवा में जो नमी का तनासब है वो 76% तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि महकमे मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक इस वक्त शहर लाहौर में 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए फ़िज़ाई आलूदगी की तो शहर लाहौर आज भी पाकिस्तान के दूसरे शहरों की निस्बत फ़िज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर मौजूद है और पिछले कई दिनों की निस्बत आज जो है वो कई गुना तक एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। आज शहर लाहौर का जो औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 250 रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के लिए कोई भी बारिश की जो नवीद है वो नहीं सुनाई गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक शहर लाहौर में बारिश का जो है वो कोई इम्कान नहीं है। आपका शुक्रिया। वफाकी हुकूमत का माह रमज़ान में चीनी 130 रुपये किलो देने का ऐलान। चीनी की बिला तातुल फराहमी के लिए म्यूनसिपल सतह पर स्टॉल्स लगाने का फैसला। हर ज़िला में चीनी के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। माह रमज़ान से 3 दिन कबल चीनी के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। वफाकी हुकूमत का माह रमजान में चीनी 130 रुपए फी किलो फराहम करने का ऐलान। चीनी की कीमतों पर शुगर मिल मालिकान और हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास वफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत हुआ। इजलास में शुगर मिल्स मालिकान, सूबाई सेक्रेटरीज और केन कमिश्नर्स शरीक हुए। इजलास में फैसला किया गया कि रमजान उल मुबारक में फी किलो चीनी 130 रुपए में फराहम की जाएगी, जिसके लिए लाए अमल भी तय कर लिया गया है। शुगर एडवाइजरी बोर्ड एलामिया के मुताबिक मुल्क भर में चीनी की बिला तातुल फराहमी के लिए म्यूनिसिपल सतह पर स्टॉल्स लगाने का फैसला किया गया है। माह रमजानुल मुबारक के दौरान हर जिले में चीनी के स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जिनके लिए पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और सूबाई इंतजामिया चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएगी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मुताबिक रमजानुल मुबारक से 3 दिन कबल चीनी के स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जो कि 27 रमजान तक जारी रहेंगे। शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मुताबिक एक शनाख्ती कार्ड पर 5 किलो चीनी की खरीदारी की इजाजत होगी, जबकि सरकारी स्टॉल्स पर चीनी 1 और 2 किलो पैकिंग में भी दस्तयाब होगी। इजलास में फैसला किया गया है कि चीनी के स्टॉल्स की निगरानी वफाकी वज़रा और चीफ सेक्रेटरीज करेंगे।